Maths, chapter number 2, long and short, lecture number 5. So today's topic is how many rooms high. Here is the one picture given of Qutub Minar and then one paragraph is given about Qutub Minar. So first we go with this paragraph. How many rooms high? The Qutub Minar is 72 meters high. The height of the Qutub Minar is 72 meters. The height of the Qutub Minar is 72 meters. About how many meters high is your classroom? आपके क्लासरूम का हाइट क्या है? So approximately I take here 3 meters. Approximately हमारे क्लासरूम का जो हाइट है वो 3 meters का है. Now you just imagine कि कुतुब मीनार का हाइट जो 72 meters है और हमारे क्लासरूम का हाइट है 3 meters approximately. Now guess how many rooms one on the top of the other will be equal to the Qutub Minar. Now you just imagine कि अगर आपका क्लास 3 मीटर का है, आपके क्लास का हाइट 3 मीटर्स है. Now you just imagine कि 3 मीटर्स 3 मीटर्स 3 मीटर्स 3 मीटर्स यानी एक क्लास के ऊपर एक क्लास, अनदर क्लास अनदर क्लास अनदर क्लास. सो एक के ऊपर एक क्लास अगर आप ऐड करते जाओ देन हाउ मेनी क्लासेस आर देयर. तो एक लाइन में कितने क्लासेस यानी कितने रूम्स होंगे. यू जस्ट इमेजिन कि जो फर्स्ट क्लास है वो 3 मीटर का है, उसके ऊपर अगेन 3 मीटर अगेन 3 मीटर अगेन 3 मीटर अगेन 3 मीटर टिल 72 मीटर्स द इक्वल टू द कुतुब मीनार. कुतुब मीनार के इक्वल तक जाना है 72 मीटर्स तक. देन हाउ मेनी रूम्स आर देयर, कितने रूम्स लगेंगे. सो जस्ट व्हाट वी डू, यस वी डू द डिवाइड. यहाँ पे डिवाइड होगा 72 मीटर्स डिवाइड बाय द 3 मीटर्स. देन वी गेट इजीली अवर रूम्स. So just I divide here 72 by 3. Three is a one digit number, so I take here one digit. 3 ones are 3, 3 twos are 6. Table of 3 till 7. So 3 twos are 6. Exactly 7 के ऊपर 2 होगा. 3 twos are 6. Now 7 minus 6, 1 remaining, 2 comes down. Now table of 3 till 12. 3 का टेबल बोलेंगे till 12 तक. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9 and 3 fours are 12. So 2 minus 2 0, 1 minus 1 0. So what is our answer? Yes, 24. 24 rooms are there to be equal to the Qutub Minar. 24 rooms एक के ऊपर एक आप अगर अरेंज करो then it's equal to the Qutub Minar. Then explain how you made a guess. आपने कैसे guess किया. So just हमने approximately एक नंबर ले लिया 3 meters. So 3 meters को approximately नंबर लेके हमने ये पूरा आंसर यहाँ पे फाइंड किया. After that the next topic is from Gandhinagar to Himmatnagar. Here are the two places given, Gandhinagar and then Himmatnagar. Two different places is given and the measurement is given. How many kilometers? The distance between these two cities यहाँ पे दिया गया है. So first we look at the how far is Gandhinagar from Himmatnagar. So just I read the paragraph here. Subodh is going to Gandhinagar which is 21 kilometers. Here is a one boy Subodh. Subodh wants to go the Gandhinagar which is 21 किलोमीटर. जहाँ पे सुबोध और मंजरी अभी साथ में है. सुबोध और मंजरी जहाँ पे साथ में है, सुबोध वहाँ से जा रहा है गांधीनगर which is 21 किलोमीटर फार. जहाँ से वो जा रहा है वो 21 किलोमीटर फार है. गांधीनगर पहुँचने में 21 किलोमीटर्स लगेंगे. Then there is a one girl Manjari. Manjari is going to Himmatnagar which is 43 kilometer away in the opposite direction. So here is a Manjari. Manjari wants to go Himmatnagar. Manjari को हिम्मतनगर जाना है and this is the opposite direction. Opposite. So सुबोध ये साइड जा रहा है, मंजरी ये साइड जा रही है. सुबोध और मंजरी जहाँ पे साथ में है this is 43 kilometer away from this place हिम्मतनगर and this place this is 43 kilometer distance. अभी 43 किलोमीटर का डिस्टेंस है. Now what is our question is हाउ फार इज गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर. ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना है. सो जस्ट लुक एट दिस इज गांधीनगर दिस इज हिम्मतनगर. अगर हमें यही यहाँ पे अज्यूम कर लेते दिस इज गांधीनगर दिस इज हिम्मतनगर तो दिस पोर्शन इज 21 किलोमीटर एंड दिस पोर्शन इज 43 किलोमीटर.
So Gandhinagar to Himmatnagar, just we add these two numbers, this portion plus this portion. So just we add 21 kilometer plus 43 kilometer simply. So 3 plus 1 it's a 4 and 4 plus 2 it's a 6. So the answer comes 64 kilometer. The distance between Gandhinagar to Himmatnagar is 64 kilometer. After that, the next topic is how far is your home from your school. यानी आपके घर से लेके आपके स्कूल तक का डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है. Here is a one boy given. ये जो बॉय यहाँ पे दिया गया है वो बॉय के घर से लेके स्कूल तक का जो पाथ है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. So just we go with this. There is a one boy who come to school from very far, यानी घर से लेके उसकी स्कूल बहुत दूर है. He first walks about 400 meter to the pond. First he walks 400 meter to the pond, यानी घर से लेके पॉन्ड तक पहुंचने के लिए उसको 400 मीटर्स वॉक करना पड़ता है. 400 मीटर्स वॉक करके वो पॉन्ड तक पहुंचता है. Then with slippers in his hand he then walk about 150 meters through the pond. अभी वो पॉन्ड के अंदर चल रहा है एंड स्लीपर हाथ में लेके पॉन्ड के अंदर 150 मीटर्स तक चल रहा है. 150 मीटर्स वॉक टू द पॉन्ड. पॉन्ड के अंदर वो 150 मीटर्स तक चलता है. Then next he runs across the 350 meters wide green field. यानी आफ्टर दैट वहाँ पे ग्रीन फील्ड है. सो वहाँ पे वो 350 मीटर्स जाता है. 350 मीटर्स वॉक इन अ ग्रीन फील्ड. 350 meters वो वहाँ से जाता है. And then he carefully crosses the 40 meters wide road to reach his school. After that, after the green field, वहाँ पे एक रोड है 40 मीटर वाइड रोड है. 40 मीटर्स का वाइड रोड है. वो उसको क्रॉस करके then he reaches his school. फिर वो स्कूल तक पहुँचता है. So first जब वो घर से निकलता है तो घर से लेके पॉन्ड तक, फिर पॉन्ड में ये चलता है. Then pond after वो green field आता है वहाँ पे वो चलता है. And then he cross the road of 40 meter wide. 40 meter wide जो रोड है वो फिर वो क्रॉस करता है. Then he reaches the school. उसके बाद वो स्कूल पे पहुँचता है. Now the question is how much does he walk every day to reach school. यानी every day वो कितना वॉक करता है home to the school. And is it more than 1 kilometer. ये more than 1 kilometer चलता है. So just we find out the distance between the home and the school. So 400 meter, then 150 meter, then 350 meter, and then 40 meter. So just we add this all numbers. 0 plus 0 plus 0 plus 0, this is 0. Then look at the tens place. 0 plus 5 plus 5 plus 4. So 5 plus 5 it's a 10, 10 plus 4 it's a 14, 14 plus 0 it means 14. So 14 it means 1's place down, 10's place carry. Then 4 plus 1 5, 5 plus 1 6, 6 plus 3 it's a 9. So total he run 940 meters to home to the school. Then distance between home to school यानी home to school का distance क्या है. So just we write it down here. 940 meters. 940 meters होता है. Then one more question is it more than 1 kilometer. ये क्या more than 1 kilometer है. So you all know 1 kilometer it means 1000 meter. 1 kilometer it means 1000 meter. So is this 1000 meter. ये 1000 meter है या उससे ऊपर है. No, this is only 940 meter. ये 1000 meter है नहीं. So आंसर कम्स इज इट मोर देन 1 किलोमीटर. सो आंसर कम्स नो. ये 1 किलोमीटर से ऊपर है नहीं एंड ये 1 किलोमीटर भी नहीं है बिकॉज ऑफ 1 किलोमीटर इट मीन्स द 1000 मीटर. 1000 मीटर दिस इज ओनली 940 meters. The next topic is find out how far your friends live from school and fill in the table. Write in meters and kilometers. So what to do here? Here is the one table is given. Just write it down here your friend's name. And then आप क्या करोगे. आपके फ्रेंड्स का जो घर है घर से लेके स्कूल यानी योर फ्रेंड्स होम टू द स्कूल.
वो डिस्टेंस क्या है, यू हैव टू राइट इट डाउन हियर। डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से लेके घर का है तो घर से लेके स्कूल का जो डिस्टेंस है यू हैव टू राइट इट डाउन हियर। सो यहाँ पे आपके फ्रेंड का जो डेटा है यहाँ पे वही फिलअप करना है। सो मैं यहाँ पे एक आपको करके दिखाती हूँ। सो जस्ट आई टेक वन ऑफ माई फ्रेंड हियर, जानकी। सो जानकी का घर स्कूल से कितना दूर है? सो इट्स अबाउट 3.2 किलोमीटर। This is 3.2 kilometer. It means 3,200 meter. So I just write down here one name. You have to fill this all blanks. And then after there is a questions are given. Look at the first question. Who among you lives nearest to the school? यानी आपने जो भी डेटा यहाँ पे फिलअप किया है, सबसे नज़दीक स्कूल से सबसे नज़दीक कौन रहता है? सो राइट इट डाउन देयर नेम ओनली, वो फ्रेंड का नेम लिखना है जो नियरेस्ट है, स्कूल से जो नियरेस्ट रहता है उसका नाम। द नेक्स्ट इज हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। फारदेस्ट यानी फार, फार कौन रहता है यानी सबसे दूर कौन रहता है, तो राइट इट डाउन देयर नेम, वहाँ पे एक नाम लिख दो, यहाँ पे से लेके कि जो सबसे दूर रहता है वहाँ पे ब्लैंक में कर दो। हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। यहाँ पे जितने भी नाम्स आपने एंटर किए उसमें से कोई ऐसा है कि जो लेस देन 1 किलोमीटर है, यानी लेस देन 1000 मीटर, अगर है देन राइट इट डाउन नेम। इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। हाउ डू दे कम टू स्कूल। ऐसा कोई है जो 5 किलोमीटर दूर रहता है। इफ एनीवन इज देयर राइट इट डाउन नेम। एंड हाउ डू दे कम टू स्कूल, वो स्कूल पे कैसे आते हैं, यानी बाई बस और बाई कार और बाई स्कूटर, यानी जो भी तरह से वो आते हैं स्कूल पे, यू हैव टू राइट इट डाउन नेम। आफ्टर दैट हियर आर द सम क्वेश्चन इज गिवन, जस्ट वी हैव टू आंसर इट। गेस एंड फाइंड आउट, जस्ट यू हैव टू गेस, ओनली यू कैन अज्यूम। द क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील। हाउ लॉन्ग द थ्रेड इज इन अ रील। रील के अंदर जो थ्रेड होता है उसका मेजरमेंट क्या होता है। इफ सपोज यू आर टेकिंग अ स्मॉल रील देन वो 50 मीटर्स का भी हो सकता है, 100 मीटर्स का भी हो सकता है, 200 मीटर्स का भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द रील साइज, वो रील का साइज क्या है उसके अकॉर्डिंगली उसका मेजरमेंट डिसाइड होता है। तो वो 50 मीटर्स का भी हो सकता है, 100 मीटर्स का भी हो सकता है, 200 मीटर्स का भी हो सकता है, एंड इट कैन बी 500 मीटर्स एंड देन मोर। सो जस्ट आई राइट इट डाउन हियर 100 meters or the 200 meters or the 500 meters or more than that, उससे भी और हो सकता है आगे। The next question is how long is the string of a kite reel? Can it be more than kilometer long? जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के अंदर जो रील होता है वो थ्रेड कितना लंबा होता है। सो सेम हियर अकॉर्डिंग टू द साइज, वो स्ट्रिंग का साइज क्या है अकॉर्डिंग टू दैट उसके अंदर थ्रेड कितना है वो पता चलेगा। सो इफ़ यू आर टेकिंग स्मॉल स्ट्रिंग तो उसके अंदर कम थ्रेड होगा, एंड इफ़ यू आर टेकिंग द लार्ज तो उसमें ज़्यादा थ्रेड होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम वहाँ पे लिख सकते हैं कि 1000 मीटर या 2000 मीटर या 5000 मीटर, सो आई जस्ट राइट इट डाउन इन किलोमीटर हियर। इट्स 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर or 5 kilometer, and then one more question is given here, can it be more than 1 kilometer long? अब वो किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है, then answer comes yes, वो पॉसिबल है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। Now question number 3 is if a handkerchief is made out of a single thread, अगर हैंडकरचीफ जो हम यूज़ करते हैं हैंडकरचीफ अगर वो सिंगल थ्रेड से बना है यानी एक ही थ्रेड से, अगर वो सिंगल थ्रेड से बना है then how long would that thread be? तो वो थ्रेड कितना लंबा होगा। सो यू कैन जस्ट इमेजिन। नाउ अगेन हियर इज इफ यू आर टेकिंग स्मॉल हैंडकरचीफ तो उसमें कम थ्रेड जाएगा, एंड इफ यू आर टेकिंग द बिग हैंडकरचीफ तो वहाँ पे ज़्यादा थ्रेड जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम जाएंगे 5000 मीटर के साथ। 5000 मीटर इट मीन्स 5 किलोमीटर। सो यू कैन राइट 5 किलोमीटर और 5000 मीटर, बोथ आर सेम। आफ्टर दैट one interesting poem is given here. The heading of the poem is I wish I were. I wish I were a kite. Just imagine अगर मैं kite होता then so that I could rise, तो मैं उड़ पाता।
देन अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट, और जो बिल्डिंग की हाइट है उसके ऊपर तक मैं जा पाता। आई विश आई वेर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो, सो दैट आई कुड फ्लाई, मैं हवा में उड़ सकता, एंड रीच अबाउ दैट काइट, और जो काइट हवा में उड़ रही है मैं उसको रीच यानी वहाँ तक पहुँच पाता। आई विश आई वेर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो। आई विश आई वेर अ क्लाउड, अगर मैं क्लाउड होता, जस्ट इमेजिन, सो दैट आई कुड मूव, तो मैं मूव हो सकता, इजीली मैं मूव हो सकता। अबाउ दोज लिटल बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स हवा में उड़ रहे उसके आसपास मैं वहाँ पे मूव हो सकता था। आई विश आई वेर अ प्लेन, अगर मैं प्लेन होता, देन सो दैट आई कुड राइज, तो मैं हवा में उड़ सकता। अबाउ द क्लाउड्स एंड द हिल्स, यानी क्लाउड्स के भी ऊपर और जो हिल्स से भी ऊपर, तो जस्ट आई विश आई वेर। After the poem, some questions are given here and these all questions are open-ended. यानी different to different person उसके answers change हो सकते हैं. So look at the first question, which is the highest building that you have seen. आपने अभी तक highest building कौन सा देखा है? यानी जो सबसे ऊंचा हो ऐसा बिल्डिंग आपने अभी तक देखा है? About how many rooms high was it? और वो कितने रूम हाई तक जाता है? So I write here answer. I saw कुतुब मीनार as the highest building. मैंने कुतुब मीनार देखा है highest building में, यानी वो सबसे ऊंचा जो मैंने दिखा है अभी तक वो है कुतुब मीनार। एंड जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू द पर्सन, यहाँ पे आंसर चेंज हो सकता है। और अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं यहाँ पे, देन वन मोर क्वेश्चन अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई इट वॉज, वो कितने रूम हाई होगा? तो जैसे हमने अभी पहले देखा अबाउट 24 रूम्स हाई उसका हाइट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ हाई कैन अ काइट गो, काइट कितना ऊपर जा सकता है? कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, क्या वो कुतुब मीनार से भी ऊपर जा सकता है? वी ऑल नो कुतुब मीनार का हाइट क्या है, 72 मीटर्स। नाउ जस्ट सी द आंसर, अ काइट में गो अबाउट अप टू 100 मीटर हाई, वो 100 मीटर हाई तक जा सकता है। A kite can go higher than the कुतुब मीनार because of कुतुब मीनार का हाइट क्या है 72 मीटर्स, और जो हमारा काइट है वो 100 मीटर से भी ऊपर जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, प्लेन कितना ऊपर फ्लाई यानी उड़ सकता है? कैन इट फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट, क्या वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर जा सकता है? विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो 9 किलोमीटर है, दिस इज 9000 मीटर। माउंट एवरेस्ट का हाइट है 9 किलोमीटर विच इज 9000 मीटर। तो क्या प्लेन उसके ऊपर भी जा सकता है? सो द आंसर कम्स, अ प्लेन कैन फ्लाई मोर देन 10,000 मीटर, जो प्लेन है वो 10,000 मीटर ऊपर तक जा सकता है यानी 10 किलोमीटर तक। एंड अ प्लेन कैन फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी जा सकता है। And the last question is here, have you ever seen clouds below you? आपने कभी clouds आपके नीचे देखे हैं? तो अगर आप प्लेन में जा रहे हो या तो आप कोई हिल्स पे हो और मॉनसून सीजन है तो आपको पता होगा कि आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि क्लाउड्स आपके नीचे होते। सो हैव यू एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस है? इफ आंसर कम्स यस देन राइट इट डाउन, यस आई सो क्लाउड्स बिलो मी। अगर नहीं है देन यू कैन राइट नो आई नेवर सो क्लाउड बिलो me. So this is the end of the chapter. I hope you all like this. Thank you so much. आभार।